ओके सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Students, today we are going to start to study another tense, that is present continuous tense. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है वो तो मैंने लेक्चर सेंड किया था, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो अच्छा students, I just want to ask you some question. Naveed, just can you tell me a single sentence of present continuous tense? He is going to school. He is going to school. Yes. Abdul Majiz Khan, welcome back. Abdul Majiz, make a sentence of present continuous tense. Uh, he is joining the class. He is driving the car. Great. Okay, जनाबी स्क्रीन नजर आ रही है ना? नहीं सर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अभी आ गई? नहीं सर। मैंने आ गई सर, आ गई। चलो ठीक, good. Okay, so today we are going to study present continuous tense. Okay. So first of all, what are the uses of present continuous tense? Okay, नाम से पता चलता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जब continue का लफ्ज़ किसी टेंस के साथ आ जाए, so it mean we have to eat, we have to use ing with the first form of the verb. ये तो पता है ना कि present continuous tense of past या future हो, we ate ing with the first form of the वर्ब से। तो ये तो कंटिन्यू टेंस की पहचान है। ये स्क्रीन में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट नजर आ रहा है, सो ये मैंने इंटरनेट से कॉल किया है। दिस इज द बेस्ट साइट, ओके, स्टडी एंड एग्जाम डॉट कॉम। यहाँ पे जो टेंसेस का हवाले से बहुत ज़बरदस्त, सो यू कैन ओपन दिस साइट और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जो यूज है ना, आप में से किसी को आती है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की? व्हाट आर द यूजेस? अब्दुल्ला बिन फैसल। सर जो काम अभी हो रहा था उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें यूज करते हैं। We use present continuous tense very good for those activities which are uh, taking place at the time of speaking. At the time of speaking, for that we use present continuous tense. यहाँ देख लें, यानी जब आप किसी काम का जिक्र करें वो आपके सामने हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यू और ongoing एक्शन ऑफ द प्रेजेंट. These actions are occurring exactly at the same time of speaking. समझ आ गई? ये जो एक्शन हो रहा है, it's occurring exactly at the time of speaking. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे घर में और आप कह रहे बारिश हो रही है। ओके, सो दिस इज, ये आपके सामने हो रही है जब आप बोल रहे उस टाइम हो रही है, ठीक है। सो इट मीन we use for those action which are taking place at the time of speaking. और इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, what is the Urdu identification of present continuous tense? So प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो उर्दू पहचान है, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं। फिर then there is a confusion between present continuous tense and present perfect continuous tense, तो हम जब आगे जाके वो पढ़ेंगे तो उसमें फिर डिफरेंस कर लेंगे, शायद आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जांपल, a boy से I am drinking water, ये सेंटेंस नजर आ रही है ना? I am drinking water, so it means that the action, यानी the action क्या है हमारे पास? Drinking water is being done
exactly at the time of the speaking. जब वो बोल रहे थे उस टाइम ये एक्शन हो रहा था. So this is the way to use present continuous tense. This tense is also called present progressive tense. इसको हम present progressive tense कहते हैं. जिस तरह हम present indefinite को present simple कहते हैं, present ये progressive tense को कहते हैं. Okay. Now हमारे पास इसकी ये it was all about the uses and identification of present continuous tense. Now structure of tense. Sorry, structure of sentence. And what is the sentence structure of this tense, this present continuous tense? So present continuous tense में we use three helping words as, am, are. और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, but we use these three helping verb according to the subject. तो आप मुझे पार्टिसिपेंट में कौन है मैं देखता हूँ. Yes, Anosh, are you there? Okay, Amar, can you say that S किसके साथ आएगा, R किस सब्जेक्ट के साथ और M किस सब्जेक्ट के साथ? Yes. Okay, यहाँ देख ले, ये है कि द प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. ये नजर आ रही है ना नवीद अब्दुल्ला, ये स्क्रीन में ये वाला, ये वर्ब की Yes sir, आ रही. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. मेरी आवाज तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर. ओके. ये देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लुकिंग. सो इट मीन वर्ब की, ये मेन वर्ब की बात कर रहे हैं. ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं. ठीक है, एज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. नोट, अभी क्या करें, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई, then the auxiliary verb am will be used in a sentence. I के साथ क्या आएगा? am आएगा. I am drinking, I am driving, I am writing. Okay. If the subject of the sentence is she, he, it are singular noun. समझ आ गई? singular noun मैं कहता हूँ boy is running, boy is playing hockey. So अगर singular noun हो, subject जो होता है sentence में, I hope you know about what is subject. Okay, subject means the doer of the action. If the subject is singular noun or subject, देखें ना subject में हमारे पास ये, अच्छा मुझे ये बताएं, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? यस सर, हो रही है रिकॉर्डिंग. हाँ, रिकॉर्डिंग का साइन शो हो रहा है. हाँ बिल्कुल. सो सब्जेक्ट में हमारे पास कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है. नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, मैस्कुलिन और फीमेल या कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है. ओके. सो ही, शी, इट के साथ क्या आएगा? एस आएगा. इस तरह हमारे पास आर, यू, दे, या प्लूरल के साथ या वी के साथ क्या आएगा? इफ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज दे, यू आर प्लूरल नाउन, देन द ऑक्सिलरी वर्ब आर विल बी यूज्ड. ओके. ये है आपके पास when it comes to sentence structure. So we study three types of sentences: positive sentences, negative, and then interrogative sentences. These are examples. This is the sentence structure. Look at this: subject plus helping verb plus main verb. नीचे भी है, subject में है, auxiliary verb में we put V8 is, am, or plus present participle verb की first form के साथ ing. So this is the sentence structure. This is the formula present continuous tense की positive. Positive sentence mean affirmative sentence, assertive or declarative sentence. Example देख लें, I am washing my shirt. She is sleeping. Kids are playing cricket. They are walking in the lawn. He is writing a letter. You are eating some food. Okay, so these are the example of present continuous tense. Okay, Rahik, are you there, beta? Am I audible to you? ओके. राहिक, आप मुझे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का कोई सेंटेंस बताएं. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
अब्दुल मोइज खान, आ रही है आवाज? अब्दुल मोइज। अच्छा चलो, आपने तो अभी बनाया था। नवीद, यस सर क्या? समझ आ गई ना आप लोगों को? यस सर, आ गई समझ। कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप उस स्टूडेंट में से जिसकी टेंसेस तकरीबन क्लियर है, आई नो। बाकी तो क्लास नहीं ले रहे। ओके, so then we will study in later that how to change this present continuous tense into passive voice, okay? वो हम बाद में पढ़ेंगे, okay? So then नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में देख ले, जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके लास्ट में हम नॉट पुट करते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल ही इज नॉट स्लीपिंग, ईट, ही इज नॉट स्टडीइंग। ये सारे हमारे पास क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंस, ओके? नेगेटिव सेंटेंस। I am not appreciating you, I am not replying her, he is not asking any question, okay? So this is the negative sentence. Now come to interrogative sentence. So जनाब, interrogative sentence हमारे पास क्या होती है? interrogative sentence में जो हमारे पास helping verb होती है वो हमेशा verb से, in interrogative sentence helping verb must be put before the subject. यहाँ देख लेना, auxiliary verb helping verb subject से पहले आया है, ओके? एज एम आर जो हमारे पास helping verb है, as you know that as एम आर are the helping verb of this subject, so we have to use these auxiliary verb before the subject, और last में question mark, okay? Are you listening to me? For example, are you listening to me? Is he calling you? Are you laughing at me? Okay? Or they are running on the road. So these are the example of interrogative sentence. Interrogative sentence, okay? So this is all about present continuous tense, okay? अच्छा, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो इसमें ये है जनाब के एक तो आप लोग साथ स्ट्रक्चर एक्सेट्रा वगैरह आप लोगों ने पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर उस टेंस को पैसे में कैसे चेंज करते हैं हम। और उसके अलावा आप लोग अगर अपनी बुक्स खोल ले, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश वी की बुक, तो वहाँ आप लोग चले जाएं और आप लोगों को बताएं कि इस बार जो एक्सरसाइज है वो दे आर एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूड के ओनली एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड इन योर पेपर, इन योर एनुअल एग्जाम। तो वहाँ जितने भी आप लोगों की एग्जांपल्स है वो सही याद करें, ओके? सो एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास जो बुक है सॉफ्ट में इंग्लिश वी की, वो यूएसबी में पढ़े, मैं यूएसबी उठा के आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है बार यस, ओके? ये है आप लोगों के एलपी, दिस इज इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ओके, तो क्लियर हो गई ना? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चलो इसको ओपन। यस बॉयज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ये इस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, जब हम इसको कम्प्लेक्स तरीके से, तो इसमें ये है कि वी कैन आल्सो यूज present continuous tense for future activities. How? If someone asks you that can we use present continuous tense for future, so you can say that yes we can use। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में पार्टी कर रहे हो, ओके? कोई भी पार्टी, फेयरवेल पार्टी या वेलकम पार्टी जूनियर को दे रहे, फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में, और
ये अब्दुल मुईज और फैसल आपस में, अब्दुल्ला बिन फैसल आपस में डिस्कस कर रहे कि हम एक पार्टी डिस्कस कर रहे हैं। सो आपस में मुईज कह रहे हैं कि वी विल अरेंज we will arrange a welcome party to our juniors. Okay, we will arrange one। अभी फर्स्ट टाइम वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे हैं सो दे यूज फ्यूचर इन, वैसे फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, बट अभी फर्स्ट टाइम मुइस कह रहे अब्दुल्ला को कि वी विल अरेंज अ वेलकम पार्टी। ओके, वी विल अरेंज फॉर आवर जूनियर, या वी विल अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर आवर सीनियर। ओके, जब वो स्कूल से फारे हो रहे हैं। अभी आफ्टर सम टाइम मोइज मीट्स नवीद। तो नवीद को जब वो नवीद से मिल रहा है, सो ऑलरेडी अब्दुल्ला और मोइज ने पार्टी के बारे में दे हैव डिस्कस्ड। अभी अब्दुल्ला जाके नवीद से मिल रहे और नवीद को पार्टी के हवाले से बता रहे कि इस तरह हमने एक पार्टी अरेंज की है। सो जो पार्टी के अरेंजमेंट है, दे हैव ऑलरेडी डन, दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड। समझ आ गई ना, दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड। अभी जब मोहित सेकंड टाइम बता रहे उसके बारे में, सो देन ही हैज टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। फॉर एग्जांपल वो नवीद से मिलके कि वी आर गोइंग टू अरेंज अ फेयरवेल पार्टी फॉर आवर सीनियर। समझ आ गई ना। सो वी कैन आल्सो यूज this present continuous tense for future when we refer to action that are already planned। ओके, और आप जब सेकंड टाइम उसका किसी और के पास साथ डिस्कस कर रहे, सो देन वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यह मेरे पास एक बुक थी, उसमें ये इट वाज गिवन देयर, ये है बुक्स। ओके, बुक्स का फोल्डर में के लिए इधर मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक्स है। फॉर एग्जांपल ये है, इसमें एक बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड यूज, या ये वाला। अभी इधर थोड़ी हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है, इसी वजह से शो नहीं हो रहा मेरे लैपटॉप में, बट मैं एक किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। आ गई ना समझ यहाँ तक? हेलो। यस सर, आ गया समझ। पहले कंटिन्यूस में। तो टेंस जो है, टेंसेस बेटा, टेंसेस आप लोग कम्प्लेक्स तरीके से, ठीक है, या ना, इसमें जो अंदर जो ज़्यादा कम्प्लेक्स वो है, आप लोग उसके बारे में पढ़े, रीडिंग करें, और साथ ये जो साइट है यहाँ खोल के, यहाँ से आप लोग बाकी टेंसेस भी दे सकते हैं। ओके, ये देखें ना, सारे ऑल टेंसेस आर गिवन। बाकी इसमें हमारे पास और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ चले जाए तो ये देख लें, या होम पे चले जाए, या टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से ये देखें, नाउन के बारे में सारे सब कुछ है। ओके, ये देखें सारे टेंसेस है, ये हमारे पास वॉइसेस है, ये नरेशन है। ओके, so this is one of the important sides। okay, so I hope it would be clear to you। do you have any question regarding present continuous tense? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टेंस है। नेक्स्ट टेंस हमारे पास कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बाद? ये देखें ना, टेंसेस सारे सीक्वेंसेस से, ऑल टेंस आर गिवन इन अ सीक्वेंस, प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट। इसके बाद क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ेंगे, हाउ टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नवीद, कैन यू से दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? सर हैज आर यूज्ड। हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? सर थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। Okay, good। Okay, so inshallah in our next lecture we will study about present perfect tense, and we will try to cover two tenses। okay, present perfect tense and present perfect continuous tense। so it was enough for today। आप लोग इस बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें, और इंग्लिश बी की जो बुक है अभी नहीं ओपन हो रही इधर, तो आप लोग वहाँ जाके
जो एक्सरसाइज है, हाँ एक्सरसाइज इज नॉट इंक्लूडेड इन योर फॉर योर फाइनल, तो आप लोग एग्जाम्पल को कम से कम याद करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल, सो हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? यस, Children are playing cricket. चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, बूंदाबांदी हो रही है। यस, अब्दुल मोइज, अमार वसीम। It is raining cats and dogs. अब्दुल्ला, ये जो आपने सेंटेंस कहा ना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ये मैंने जब बताया, ये वी यूज दिस ईडियम फॉर, ये हम जब ज्यादा बारिश हो रही, जब मूसलाधार बारिश हो रही, सो हम वी कैन से दैट इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड। बूंदाबांदी जो है ना, दैट इज जो हल्की बारिश होती है उसको हम कहते हैं ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग, ओके, सो दैट इज कॉल्ड ड्रिजलिंग। Okay, sir. ओके, इट इज ड्रिजलिंग, ओके। और अगर मैं कह दूं कि सुबह से बारिश हो रही है, तो फिर ये कौन सा टेंस है? Present perfect continuous tense. Good, present perfect continuous tense. Very good, Abdullah. It, it has been raining since morning. बाकी जो बच्चे हैं जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं और वो क्लास ऑनलाइन क्लास जूम क्लास नहीं ले रहे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेप अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ट्राई टू अटेंड दिस लाइव सेशन। लाइव सेशन में ये होता है कि हम, इफ यू आर द पार्ट ऑफ दिस क्लास, सो आई मे आस्क यू क्वेश्चन, तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो रही है, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला की। ड्रेजलिंग का स्पेलिंग का तो पता है ना, TRIZZLING, ड्रेजलिंग, ओके। Okay. Okay, so I hope it would be clear to you. So we will study the next tense in our next class. Okay, okay. Have any question? Hello, beta. Do you have any No, question? sir. Okay, No, so sir. thank you so much. God bless you all. Take care and remember all your teacher, all your friends. Okay, and your special prayer Yes, sir. study at the time of Aftari. Okay, and try to offer Yes, your sir. time prayer regularly and try to do recitation of Holy Quran. Okay, make a target, keep a target, and minimum at least you have to recite the Holy Quran on daily basis, one para or half, or you can recite two para. Okay, so आप लोगों की एग्जाम आ रही है, pray for your exam. Okay, thank you so much, see you tomorrow inshallah. Hafiz.